এই ডালে বসে বাঁশি বাজাতো। यहाँ भगवान ने 11 इयर्स और 52 डेज यहाँ भगवान का बाल लीला किया है। তো আমি এখানে কানাইয়ার গলি থেকে এই যে চুড়ি নিলাম। তোমার নাম क्या है? अभिजीत। अभिजीत क्या? सरनेम क्या है आपका? नाम हाँ अभिजीत। पापा का नाम बता बे। रामवीर। রামবীর। তো আমরা একটা গাইডেন্স নিয়ে নিয়েছি, উনি আমাদেরকে সবকিছু বলবেন কোথায় হয়েছে না হয়েছে, কোথায় কারাগারটা আছে। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আবারও বেরিয়ে পড়েছি ঘোরার জন্য। ঘুরতে ভীষণ ভালোই লাগছে। এবার মথুরা ট্যুরে। তো আমার পুরো জার্নিটা তোমরা দেখতে থাকো, আমি শেয়ার করব। আমরা এখন আছি কৃষ্ণরাজপুরম রেলওয়ে স্টেশনে। এখান থেকেই আমরা ট্রেনে উঠবো পুরো। তো সাথে থেকো, সঙ্গে থেকো লাস্ট অফ দি ভিডিওতে। তোমরা খুব খুব এনজয় করতে পারবে আশা করছি, আর আমিও ভীষণ এনজয় করব। আমাদের ট্রেন চলে এসেছে। উঠে পড়েছি, আমাদের সিটের মধ্যে বসেও পড়েছি। আর কিছুক্ষণের পরে স্টার্ট হয়ে যাবে ট্রেন আমাদের। বাজে 10:30। তো আমি আজকের ব্লগটা এখানে স্টপ করছি। কালকে আবার স্টার্ট করব, কারণ এখন ঘুমাতে হবে রাত্রেবেলা। দেখা হচ্ছে সকালবেলা। 12টা বেজে গেছে। হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে। গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো সকাল হয়ে গেছে, এখন বাজে 8:30। উঠলাম, মুখ ধুলাম, ব্রেকফাস্ট করলাম। ইনি তো এখনো মুখ ধোয়নি, পাগলের মধ্যে হয়েছে। আমার খাওয়া কমপ্লিট। কালকে রাত্রি 12টায় উইশ করেছে, তাই দেরি করে ঘুমিয়েছিল। আমার হ্যাপি বার্থডে আজকে। এবার প্রথম হলো যে আমার বার্থডের দিনে আমি ট্রেনে আছি, কোনো সেলিব্রেশন না, কোনো ব্যাপার না। তবে আমাকে উইশ করেছে আমার বলু রাত্রি 12টার দিকে। এটাতে আমি খুব খুশি। আর ফার্স্ট টাইম ট্রেনের মধ্যে বার্থডে। এখানে আমরা পৌঁছে গেছি কাচিপুরা স্টেশন। এটা হায়দ্রাবাদে, মানে আমরা প্রবেশ করে নিয়েছি অলরেডি হায়দ্রাবাদে। তারপর আবার স্টার্ট জার্নি। মথুরা স্টেশন। এবার আমরা হোটেল একটা খুঁজতে হবে, হোটেলে গিয়ে ঢুকবো প্রথমে। হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা মথুরাতে নেমে হোটেলে ঢুকে পড়েছি। হোটেল নিয়ে নিয়েছি। এবার খাবারের জন্য একটু বাইরে যাব, খাবারটা খেয়ে নিই, তারপরে রেস্ট করব, তারপরে আস্তে আস্তে সব ঘুরবো। তো আমরা একটা হোটেলে এসেছি, খাবার তো খেতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ফুডে। বেশ সুন্দরই লাগছে, চারিদিকে আমাদের শ্রী ভগবান কৃষ্ণ। তো আমরা নিয়েছি নর্মাল একটা থালি নিয়েছি,
আর একটা মিডিয়াম কলে নিয়েছি যেখানে আমাদের পনির দিবে, ডাল ফ্রাই দিবে না, রাইস দিবে। তো গোলু বাবু ফিলিংটা কেমন লাগছে বলো ভগবানের শহরে এসে? বলো রাধে রাধে। হাতি ঘোড়া বলো পাল রাধে রাধে। কি জয় কানাইয়া লাল কি। বৃন্দাবন যখন যাব তখন রাতে যাব। তো আমরা রেস্ট নিয়ে আবার ফিরে এসেছি, এবার বেরিয়ে পড়েছি যেখানে মেন জায়গা, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের লালন পালন করা হয়েছে আমাদের ভগবানের, সেখানে গোকুল। তো আমরা ফার্স্টে গোকুলে যাচ্ছি, তো তোমাদের সাথে শেয়ার করব গোকুলের সব দৃশ্যগুলো। সাথে থেকো লাস্ট অবধি, খুব আনন্দ হবে, মজা পাবা আর দর্শন করার সুযোগও পেয়ে যাবা। বন্ধুরা, আমরা এখন পার করছি যমুনা নদী। যমুনা নদী পার করছি এখন আমরা। এখন তো ব্রিজ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই যুগে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার বাবা বাসুদেব যে ডালিতে করে নিয়ে গেছিল, সেই যমুনা ভাগ্য করে আমি দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে দেখো বন্ধুরা, যমুনা নদীটা এখান থেকে দেখো। मंदिर तो होती है ना वो किनारे में आरती होती है। इधर आ जाओ बहन, समझ लो। देखिए यहाँ से आपका गोकुल धाम का यात्रा प्रारंभ होती है। इसको बोलते हैं पतित पावन कुंड। यहाँ यशोदा मैया ने भगवान के छठी के वस्त्र धोए हैं। 6 दिन के भगवान हुए ना, हाँ 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 उनका हाँ। वस्त्र धोए। सामने ये आप बाउंड्री जो देख रहे हैं, इसके उस पार था मधुबन, जहाँ भगवान गाय चराने जाते थे। गाय चराने और जाते। जब भगवान मधुबन में जाते थे गाय चराने, तब यहाँ बैठ के बंसी बजाते थे। देखिए 2 कदम इस डाल पे। देखिए 2 कदम का वृक्ष उस पार है हाँ। और 2 इस पार। यहाँ भगवान ने बंसी बजाया, यहीं से प्रभु का एक नाम पड़ा है बंसी वाला। बंसी वाला। ये जो वस्त्र आप लोग देख रहे हो, ये मनोकामना का वस्त्र है। जो भक्त लोग मंदिर में भोग लगाते हैं, उनको मंदिर से मिलता है ये भगवान का प्रसादी वस्त्र। अच्छा। इधर मनोकामना मांग के इस वस्त्र को बांध के जाते हैं। हाँ। प्रभु 1 वर्ष के अंदर अंदर सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। अन्न वाले को अन्न, धन वाले को धन, जैसा भगवान से मांगते हैं। यहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है और यहीं पे आके पूर्ण होती है। यहाँ आप सब लोग सिर रख के नमस्कार करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से गोकुल की यात्रा के लिए चलेंगे। प्रणाम करिए। यहीं से आपका यात्रा এখানে আমাদের একটা ছোট্ট গপু আছে। उसके बाद में তো শুনলে বন্ধুরা, এখানে সেই এই ডালে বসে বাঁশি বাজাতো। তো এখানে যে 6 দিনের যে আমাদের কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই 6 দিনের কৃষ্ণর যে কাপড়টা এখানে আমাদের যশোদা মা এখানে ধুয়েছিল। সত্যি অপূর্ব। मथुरा हाँ मथुरा। हाँ। और पालन पोषण यहाँ हुआ गोकुल धाम गोकुल के में। अंदर। यहाँ भगवान ने 11 इयर्स और 52 डेज यहाँ भगवान का बाल लीला किया है। भगवान अच्छा। अकासुर मारे, बकासुर मारे, पूतना मारे, उखल से हाथ बांधा, मिट्टी खाया, तो मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाया, तीनों लोगों का दर्शन कराया। यहाँ का जो मेन जगह हैं, वो सब मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। ठीक है। और थोड़ा स्लो चलिए माता जी के साथ में, जिससे मुझे भी सुनने को मिलेगा। माता जी वैसे ही स्लो चल रहे हैं। आपका नहीं, आपका हाँ, स्पीड सही है। देखो, इनका इतना तेज, कल हम लोग भी इस अवस्था में पहुंच जाते। ये तो सब शरीर का अवस्था है। भगवान का जो जन्म हुआ है ना, वो हुआ है मथुरा। और भगवान के पिताजी आधी रात को सर पर टोकरी में रख के यहाँ भगवान को लेके आए और ऐसा 7 द्वार पार करके नंद बाबा के यहाँ नंद महल में भगवान को छिपा के गए हैं। और नंद बाबा के यहाँ जन्म किसका हुआ है? कन्या का, योग माया का। योग माया। उसको यहाँ से बदला करके लेके गए।
ये गोकुल का सबसे छोटा गौशाला है, गोपाल गौशाला। यहाँ क्या है देखिए, समझ लीजिए, यहाँ 90% ब्राह्मण लोग रहते हैं और सभी लोग यहाँ पे गाय पालते हैं। बिल्कुल। यहाँ गाय पालने का और गाय दान करने का विशेष महत्व है। यहाँ गाय का विक्रय नहीं होता है। आपको हर घर में गाय और मंदिर मिलेगा। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें ये दोनों चीज़ ना हो। लेकिन यहाँ गाय को बेचा नहीं जाता है, विक्रय नहीं होता है। अगर कोई भी ब्राह्मण पालने में असमर्थ होता है, वो इधर गौशाला में दे देता है। अच्छा। इनका सबका लालन पालन नंद बाबा के यहाँ से ही होता है, जो यहाँ का मेन मंदिर है। देखो, डिस्ट्रिक्ट जज उसके रिसीवर हैं। जो भी आप लोग भक्त लोग भोग राग की सेवा करते हैं, उसका एक शेयर आता है इन लोगों के लिए, गौशालाओं के लिए, गौपालन के लिए। और ये क्या है देखिए, सुबह शाम तो ये यहाँ मिलती हैं, बाकी दिन में ये जंगल में जाती हैं घूमने के लिए। इनके कानों में मुरली का धुन सुनाई देता है। आज भी किसी को लाने ले जाने का आवश्यकता नहीं है। गाय को हाँ, निश्चित समय पे निश्चित जगह पे, सुनिए, निश्चित समय पे निश्चित जगह पे सुबह अपने आप जाती हैं और शाम को अपने आप वापस आती हैं। मैं या आप कहीं अन्य ले जाने का प्रयास करेंगे तो नहीं जाएगी। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, यहीं से हम लोग गोकुल के अंदर एंटर करते हैं। गोकुल का सीमा यहीं से प्रारंभ होता है। आइए, তো চলো বন্ধুরা, তোমরা তো সবই শুনতে পেলা। এখান থেকে স্টার্ট হবে আমাদের গোকুল দর্শন। এটা মেন গেট ছিল, যেটা তোমাদেরকে আগেই দেখালাম আমি। देखो, पहले ये এটা सब গৌশালা। पहले ये सब गोबर और मिट्टी का था। अभी क्या है, समय के प्रभाव से ये पक्का हो गया, मार्केट बन गया। बाकी भूमि ये वही है, गलियां ये वही हैं जहां भगवान ने लीलाएं की हैं। এইখানে বন্ধুরা মানে সব জায়গায় আমরা পুরনো যে প্রাচীন সেই স্মৃতিগুলো এখনো আছে, এগুলো মিটে যায়নি। ये है भजनाश्रम। यहाँ मीराबाई लोग भजन करती हैं। मीराबाई बोले हाँ, हाँ, पता है, तो पता है। निराश्रित महिलाएं, जिनके कोई खाने कमाने वाला नहीं होता। नहीं है। यहाँ भारत की कोई भी महिला जो निराश्रित हों, यहाँ निवास कर सकती हैं। इनका काम है 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को यहाँ भजन करना। भजन करना। राधे श्याम आने वाले भक्त लोगों के लिए। इनका सबका लालन पालन भी नंद बाबा के यहाँ से होता है। देखिए, नंद बाबा यहाँ के राजा थे। पहले वो सभी का पालन करते थे। अभी क्या है, ट्रस्ट बना दिया है गवर्नमेंट के, अंडरटेकिंग हो गया, तो अभी वो ट्रस्ट करता है नंद बाबा की तरफ से। आइए, ओके। वैसे तो गांव छोटा है, लेकिन धाम बहुत बड़ा है, धाम बहुत महत्व तो बहुत बड़ा है। हाँ। यहाँ आज भी आप लोगों को भगवान की कृपा से 3-4 जातियाँ नहीं मिलेंगी। पूरा गाँव आप घूम कर देखिएगा। कैसे नाचूं कान्हा के बिन, कैसे नींबू फूल ले लो, आपका मन है ना भगवान के झूले पे चढ़ते, तो वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। নাও মা, ফুল নিয়ে নাও নাও। তো আমরা ভগবানের ঝুলাতে ফুল চড়ানোর জন্য ফুল নিলাম। 5 টাকা করে নিল এক বাটি ফুল, মানে 2 বাটি ফুল নিলাম। আর এখানে দেখো প্রাচীন, মানে বহু প্রাচীন, আর এখানে জায়গা জায়গা জল ব্যবস্থা করা হয়েছে। और कोई भी गंदा वस्तु, अंडा, मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज, गोकुल की सीमा में आपको किसी भी दुकान पर नहीं मिलेगा। कोई समाज में यूज नहीं करेगा। क्योंकि ये चीज़ें भगवान के भोग में नहीं आती हैं, और जो भोग में नहीं आता उसका इधर बिक्री नहीं है। अगर कोई भी दुकान वाला बेचेगा, उसका दुकान बंद करवा दिया जाएगा। और हम लोगों में से अगर कोई यूज करेगा तो उसका समाज से निष्कासन हो जाएगा, उसका मंदिरों में प्रवेश बंद हो निषेध, जाएगा। एकदम बंद। তো একদম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গলি গলি ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেখানে খেলাধুলা করেছে ঠাকুর, ঘুরে বেরিয়েছে, বড় হয়েছে, সেই জায়গায়। भगवान को अपने हाथ से, देखो, नंद बाबा और यशोदा मैया ने यहाँ भगवान को झूला झुलाया। आज आप लोगों को अपने हाथ से उसी झूले में भगवान को झूला झुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहला महात्म है यहाँ भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाने का महात्म, और तीसरा महात्म है प्रभु का चरण स्पर्श करने का। ये तीनों चीज आपको गोकुल में ही प्राप्त होंगे। बोलते हैं नंद चौक। नंद चौक, ये नंद बाबा का चौक है। भगवान का जो जन्म हुआ ना, हाँ। वो हुआ है जन्माष्टमी को, मथुरा मामा कंस के कारागार में। तो वहाँ जन्माष्टमी को मनाया जाता है जन्मोत्सव। और यहाँ भगवान को रात में लेके आई और दूसरे दिन पता लगा, तो यहाँ जन्माष्टमी के अगले दिन नवमी को मनाया जाता है नंदोत्सव। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल लाल की, जय कन्हैया लाल की। जो मटकी फोड़ते हैं ना, हाँ, हाँ, वो देखो हाँ। इसी पे लगाया
ও यहीं का उत्सव এখানে। होता है, इसी खम्भे पे लगता है। তো এখানে জন্মাষ্টমীতে এই খাম্বাটাতেই মানে যে ঘরটা ফাটানো হয় না জন্মস্থানে। आप लोगों ने पहले कभी देखा हो या नहीं देखा हो, अब की बार देखिएगा जन्माष्टमी के अगले दिन लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, पूरा मीडिया इधर रहता है, बहुत भक्त लोग रहते हैं, बहुत धूमधाम से यहाँ आनंदोत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी की सवारी आती है, प्रसाद वस्त्र सोना चांदी सब कुछ लुटाया जाता है उस दिन। देखिए यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे तो आप गोकुल की विश्व प्रसिद्ध गलियां देखोगे। आपने जगह जगह सुना होगा गोकुल की कुंज गलियां और गोकुल का ग्वाला। गोकुल का ग्वाला बोलते हैं भगवान को, और गोकुल की गलियां आज आप दर्शन करेंगे, दान गली, माखन चोर गली, रंगीली गली, देखो इसको बोलते हैं दान गली। यहाँ से गोपियां मटके में माखन लेके जाती थी मथुरा महाराज कंस के लिए बेचने के लिए, আচ্ছা और यहाँ भगवान उस पर दान मांगते थे, तनक दही के कारण ही तेजा मेरो दान। नहीं देने पे मटकी को तोड़ फोड़ के इन गलियों के अंदर छुप जाते थे। हाँ। देखिए पहले ये सब गोबर और मिट्टी का था, हाँ। अभी क्या है समय के प्रभाव से ये पक्का हो गया, मार्केट बन गया। बाकी नाम इसका आज भी दान गली है। दान अगर आप गली। यहाँ का किसी को एड्रेस देंगे तो हाँ। दान गली बोलेंगे तभी वो पहुँचेगा। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया লাল लाल কি জয়। आइए। তো তোমরা তো শুনলে এই গলি দিয়েই মানে গোপীরা যখন মাখন নিয়ে যেত আর ঠাকুর ভগবান এখান থেকে চাইতো, আর যদি না চাইতো তাহলে কেড়ে মাটকি টাটকি ফাটিয়ে একাকার করে দিত। বাল্যকালের লীলা। এগুলো সব আগে মাটির ছিল, এখন সময়ের প্রভাবে সব কাঁচা বাড়িগুলো এখন পাকা বাড়ি হয়ে গেছে আর পুরো মার্কেট হয়ে গেছে। आ जाओ वहाँ अंदर ही लगता है। आ जाओ माता जी। আসো মা, মা একটু স্লো হাঁটছে। अरे है पर क्यों रूठी हो कान्हा याद ही आए जमुना तट पर बंसी विराजे जमुना तट पर बंसी विराजे। তো এই गलिটা হলো মাখন চোর গলি, মানে এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাখন চুরি করে নিয়ে বাস গলি গলিতে লুকিয়ে যেত। এখানে সব দোকান, গলি গলিতে দোকান। तोरे बिन धन भागे कान्हा रे रे कान्हा रे तोरे এই গলিটা হলো রঙ্গোলি গলি, মানে এখানে হোলি খেলা হয়। হোলির সময় এখানে ভীষণ সুন্দর উৎসব হয়। नंद मेन उत्सव जो यहाँ का मेन मंदिर है उसका सबसे छोटा गौशाला है। वो जो आपने देखा वो पूरे गांव का था, ये मेन मंदिर का। यहाँ क्या है गाय का विक्रय नहीं होता है, लेकिन जो भी भक्त मेन मंदिर में राजभोग का सेवा करके जाते हैं उनके और उनके संपूर्ण परिवार के नाम से यहाँ एक गाय का पालन चलता है आज भी। आप लोग दोबारा कभी भी आएंगे तो आपको चेक कर सकते हैं किस गाय का पालन हमारी तरफ से चल रहा है। हमारे मन कब हमारा दोस्त बरसाए लाज है आज सजी ना में राधा ना में मीरा ना में মহারাজের মানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশে একদম চায়ের দোকান আছে, খুবই টেস্টি। এখানে আসলে এই চাটা অবশ্যই খেও, বেশি না 10 টাকা করে নিচ্ছে। এই ভাইটা তৈরি করছে, ছোট্ট একটা ভাই। ভাই ভালো বলে দাও একটু। হ্যালো হ্যালো। আসো আসো যাও তো খেলো। आगे तोरे बिन धन भागे कान्हा रे 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 लेके जाओ राधे राधे 10 रुपए का दिया कान्हा के दाम का सिंदूर चंदन लेके जाए कान्हा का बंसी लेके जाए देख लिया। তো আমি এখানে কানাইয়ার গলি থেকে এই যে চুড়ি নিলাম, 4টা চুড়ি 20 টাকা, কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর। দেখো, তো আমি গিফট নিয়েছি আমার ফ্রেন্ডদের জন্যও নিয়েছি, তাদেরকে দিব বলে। তো আমি 5 জোড়া নিয়েছি।
কুর্তি নিয়ে যাচ্ছি, সেটা হলো পার্স। কত সুন্দর লাগছে দেখো তো, 100 টাকার মধ্যে। তো বন্ধুরা আমরা গোকুল দর্শন করলাম, তোমাদেরকেও দর্শন করালাম। কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানাও তোমাদের কেমন লাগলো। আর এবার আমরা যাব যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিল, কৃষ্ণ জন্মভূমিতে যাব। ওটাকে কৃষ্ণ জন্মভূমিতে যাব। এখানে তো গোকুলে বড় হয়েছে, মানে 11 বছর 52 দিন এখানে ছিল ভগবান, এই গোকুলে লীলা করেছিল, বড় হয়েছে। এবার যাচ্ছি যেখানে জন্ম নিয়েছে সেখানে যাচ্ছি, তো খুবই ভালো লাগছে। মানে তো সাথে থেকেও আরো অনেক কিছু দেখতে বাকি আছে। পণ্ডিতের মুখে তো সব শুনে নিলে, ও গাইড করলো খুব সুন্দরভাবে, বোঝালো কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে। খুবই মজা হচ্ছে, মানে কোনো জায়গায় এত ঘুরে মজা পাইনি, যেখানে ঠাকুরের জায়গায় এসে এত মজা পাচ্ছি, এত আনন্দ পাচ্ছি, আমাদের সৌভাগ্য। আর তোমরা অবশ্যই এসো, গোকুলে অবশ্যই এসো, মোস্ট ওয়েলকাম। রাধে রাধে। এখানে যার সাথেই দেখা হবে রাধে রাধে, না তো জয় কানাইয়া লাল কি। আমার गोलू के कन्हैया लाल लगছে। राधे राधे। तिलक हो गया और नहीं, और मेरी माता नहीं नहीं भाई, बाप रे, हो गया ना। तुम्हारे लिए कुछ है, ले वो लोगी, मिश्री है लोगी, खाओगे? 10 रुपए दे दो, फ्रूटी ले ली है। फ्रूटी खाना है, दादा খেয়ে দাও। তো এই বাচ্চাটা তিলক দিচ্ছিল, তো ও চাইছে 10 টাকা, কারণ ওই ফ্রুটি খেতে চায় তিলকের বদলে। তো তিলক তো আমাদের দেওয়া হয়ে গেছিল, তাই বললাম चॉकलेटी যে फ्रूटी खावे, चॉकलेटी फ्रूटी। तुम्हारा नाम क्या है? अभिजीत। अभिजीत क्या? अभिजीत सरनेम क्या है आपका? नाम हाँ अभिजीत। बाबा का नाम बता बे। हाँ, रामवीर। रामवीर। तुझे वीडियो में हो? तुमको ये बहुत पसंद है? ठीक है, खाओ, टाटा, बाय बाय। अपना काम हो गया। আপনার কাম হবে। তো খুবই ভালো লাগলো বাচ্চাটার সাথে কথা বলে, ভীষণই মিষ্টি। তো এবার আমরা যাচ্ছি কৃষ্ণের কারাগারে, যেখানে জন্ম নিয়েছিল কৃষ্ণ, সেই কারাগারে যাচ্ছি। তো আমরা একটা গাইডেন্স নিয়ে নিয়েছি, উনি আমাদেরকে সব কিছু বলবেন, কোথায় হয়েছে না হয়েছে, কোথায় কারাগারটা আছে। তো উনি 100 রুপিস চাইলেন, তো আমরা 100 রুপিসে রেডি হয়ে গেছি। আমরা হয়তো প্রবেশ করছি আস্তে আস্তে। তো এখানে সামানগুলো দিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে, ভেতরে হয়তো ক্যামেরা নিয়ে যেতে দিবে না, আমরা সেই দৃশ্যটা তোমাদের দেখাতে পারবো না বন্ধুরা, তোমরা আসতে হবে সেই দৃশ্য দেখার জন্য। শুধু বাইরে থেকে আমি দেখাতে পারবো, কিছু মনে করো না, আমাকে অনুরোধ ক্ষমা করে দিও তার জন্য। ভেতরে ক্যামেরা প্রবেশ করতে দেবেন না উনিরা। তো আমি এখানে স্টপ করছি, বাইরে থেকে আমি শুধু লাস্টে নিয়ে নেব। তো আমি হোটেলে চলে এসেছি বন্ধুরা। আজকে আমরা দুটো জিনিস কভার করলাম, জন্মভূমি প্লাস গোকুল। এখন আমি চলে এসেছি, এখন বাজে রাত্রি 10:30, আসতে অনেক লেট হয়ে গেল। ফার্স্ট পার্টটা তোমরা দেখে নিলা, কালকে সেকেন্ড পার্ট চলবে, তোমরা দ্বিতীয় ব্লগে ওটা দেখতে পারবা। কালকে আমরা বৃন্দাবন কভার করে নেব। এর মতো গুড নাইট, কালকে আবার দেখা হচ্ছে, সাথে থেকো, আরো অনেক কিছু দেখাবো তোমাদের। টাটা।